kick off with the section number 11 of your chapter Diversity in Living Organisms. तो अभी हम यहाँ पे section number 11 डिस्कस करने वाले हैं, in which we are also gonna study about kingdom Animalia SAT7. SAT6 तक हमने जो नॉर्मली जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट किंगडम एनिमेलिया के जो हमारी क्लासेस थी, फाइलम्स थे, उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया. In this session, we are also going to discuss about some classes and phylums which are aves, amphibians and mammalia. So let's study about them. First is amphibia. Actually, amphibia जो word है वो एक ऐसे word से है जिसका meaning होता है double life. Clear? Actually, in evolutionary terms, there are the first group among the chordates to be land terrestrials. जितने भी हमारे evolutionary terms हैं उनको देखते हुए हम ये देख सकते हैं कि जो amphibians होते हैं, these are the first groups among the chordates. ये chordates में first group रहते हैं to be land terrestrials, जो land terrestrials होते हैं. Clear? Land terrestrials meaning you know very well. So these are very you can say these are the first group among the chordates to be land terrestrial. They are amphibians in nature, that is, they can live both on land and as well as in water. Thereby इनको double life हम normally बोल सकते हैं कि ये जो nature में amphibians होते हैं, that is, ये water में भी रह सकते हैं और ये land पे भी रह सकते हैं. Clear? That amphibians are the first group among the chordates to be land terrestrial, and they are the amphibians in nature, that is, they can live both on land as well as on water. Actually, they lack scales and have mucus glands in their skin, which secrete mucus and keep the skin moist. Actually, इनमें क्या होता है, इनमें scales की कमी रहती है. They lack scales, इनमें scales present नहीं होते. They have mucus glands, इनमें mucus glands present रहते हैं in their skin obviously, which secretes mucus and keep the skin moist. जो क्या कहते हैं, mucus glands present है तो वो किसका formation करेंगी? Obviously वो mucus का formation करेंगी. Clear? जिसकी वजह से वो skin को moist रख पाती हैं. Clear? That amphibians lack scales and have mucus glands in their skin, which secretes mucus and keep the skin moist. Amphibians are cold-blooded and have three-chambered heart. जो amphibians रहते हैं वो cold-blooded रहते हैं first. Second, इनका जो heart है वो three-chambered रहता है. Except crocodile that have four-chambered heart. सिर्फ एक crocodile है जो एक exception है जिसका four-chambered heart रहता है. Clear? That amphibians are cold-blooded and have three-chambered heart, except crocodile that have four-chambered heart. Also, they have distinct head and trunk. इनमें जो head and trunk रहते हैं वो भी distinct रहते हैं. Neck and tail may or may not be present. इनमें neck present भी हो सकती है, tail present भी हो सकती है, और possible है neck और tail present ही ना हो. Clear? That they have distinct head and trunk, and also neck and tail may or may not be present in them. Respiration can be either by gills or by lungs. जो respiration रहता है इनमें gills के थ्रू भी हो सकता है और lungs के भी थ्रू हो सकता है. जब ये obviously water में रहेंगे तो respiration कैसे होगा? जो ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व है उसकी वजह से ही तो respiration हो पाएगा. तो उस जो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसको वो किसके थ्रू गेन करेंगे? बाय देयर गिल्स. और जब भी वो लैंड पे प्रेजेंट रहेंगे तो वो ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन गेन करेंगे, तो वो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन कर सकते हैं. एम्फीबियंस ले एग्स, वो अंडे देते हैं, वो एग्स देते हैं, एंड आल्सो जनरली रिक्वायर वाटर फॉर द completion of their life cycle, as the eggs are laid in water and larvae are aquatic. क्या होता है कि जो हमारे एम्फीबियंस होते हैं उन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए. क्यों? क्योंकि जो उनके एग्स हैं वो वाटर में ही देते हैं. आई मीन टू से जो वो एग्स ले करते हैं वो वाटर में करते हैं, और जो लार्वे होते हैं वो उनके एक्वेटिक रहते हैं. लार्वे क्या होते हैं? जो यंग वंस होते हैं, दैट इज जो किड्स एम्फीबियंस हो सकते हैं, जो यंग एम्फीबियंस हैं उन्हें हम लार्वे बोल सकते हैं, और वो एक्वेटिक रहते हैं. Here, that amphibians generally require water for the completion of their life cycle, as the eggs are laid in water and larvae are aquatic. Their sexes are separate and the external fertilization takes place. इनके जो sexes होते हैं वो separate रहते हैं और इनमें external fertilization रहता है. Clear? Example के लिए frog, toad, puppy, etc. ये सब किसके examples हैं? ये सब amphibians family के.
एम्फीबियंस फैमिली की एग्जांपल्स हैं ये ऑब्वियसली, और इनके साथ साथ हमने स्टडी कर लिया कि एम्फीबियन क्या होते हैं और हम कैसे उनमें जो उनके फंक्शंस होते हैं, कैसे उनकी स्ट्रक्चर होती है, कैसे उनके फंक्शंस होते हैं, कहाँ पे वो रह सकते हैं, नॉर्मली हमने सभी डिस्कस कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू लर्न अबाउट रेप्टिलिया। एक्चुअली जो रेप्टिलिया है वो एक वर्ड आया है जिसका मीनिंग होता है टू क्राउल, दैट इज जो रेंगते हैं उन्हें हम रेप्टिलिया फैमिली में रखते हैं। These animals possesses dry skin, have scales and live in warmer regions as they are cold-blooded animals. ये भी क्या होते हैं? Cold-blooded animals होते हैं। Amphibians भी क्या थे? Cold-blooded animals थे। Reptilia भी हमारे cold-blooded animals होते हैं। ये क्या होते हैं? इनमें dry skin present रहती है। They have scales, इनमें scales present रहते हैं और ये warmer regions में रहते हैं क्योंकि ये cold-blooded animals होते हैं। Also, these are the first class of terrestrial animals. जो terrestrial animals हैं उनकी first class क्या होती है? Reptilia ही उनकी first class होते हैं। Clear that these animals possesses dry skin, have scales and live in warmer regions as they are cold-blooded animals. These are the first class of terrestrial animals. Clear? Also, they lay eggs though covering on land and do not lay eggs in water like amphibians. ये क्या होते हैं? ये एग्स देते हैं ऑब्वियसली, टफ कवरिंग होती है इनकी। क्लियर? एंड ये जो है जो एग्स हैं वो वाटर में ले नहीं करते जैसे हमारे एम्फीबियंस वाटर में देते थे। क्लियर? कि जिनके जो एग्स हैं उनकी जो कवरिंग है वो टफ रहेगी, जो एग्स होंगे वो लैंड पे देंगे, ना कि जो वाटर है वहां पे वो एग्स को ले डाउन करेंगे। क्लियर? ऑल्सो लंग्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन दैम। जो हमारे रेप्टिलिया होते हैं उनमें लंग्स जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल व्हिच हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। ज्यादातर ये जितने भी होते हैं सब में 3 चैम्बर्ड हार्ट रहता है, सिर्फ क्रोकोडाइल को छोड़ के जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट रहता है। एंड देयर सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। इनके जो सेक्सेस रहते हैं वो सेपरेट रहते हैं एक दूसरे से और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल रहता है। क्लियर? फर्टिलाइजेशन 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये आप ऑब्वियसली 10th में स्टडी करोगे व्हेन यू विल बी स्टडीइंग अबाउट हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इन दैट सेक्शन you will be studying about detailed study about internal and external fertilization. Here you have to know just one thing, that in internal fertilization, fertilization takes place in the human body, I mean to say in female body, while in external fertilization, fertilization takes place out of the body. Second thing is that embryo of these animals is protected inside the egg by extra embryonic membrane. जो एम्ब्रियो होता है इन एनिमल्स में वो एक आई मीन टू से जो एग्स हैं उनके अंदर जो एम्ब्रियो है उनका एनिमल्स का, उसे एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के थ्रू प्रोटेक्शन मिली हुई होती है। एग्जांपल्स के लिए टर्टल, चैमेलियन, कोबरा, टर्टोइस और जो लेजार्ड है, ये सब किसके एग्जांपल्स हो गए? ये सब रेप्टिलिया फैमिली के एग्जांपल्स हो गए। अभी बात आती है अबाउट एबीज। एबीज में क्या आता है? जितनी भी हमारी वर्ड्स रहती हैं वो हमारी एबीज में आती हैं। These are warm-blooded animals having 4 chambered heart. जो एबीज होते हैं वो warm-blooded animals होते हैं और उनमें 4 chambered heart present रहता है। Their body is divisible into head, neck, trunk and tail. That is उनकी जो body है वो head, neck, trunk, tail में divisible रहती है। These are flying animals having exoskeleton of feathers. ये जो होते हैं flying animals होते हैं obviously, और इसमें क्या होता है? इसमें exoskeleton present रहता है। They lay eggs और ये eggs lay down करते हैं। Also, they have modified forelimbs into wings and jaws are modified into horny toothless beak. क्या होता है कि इनमें फोरलिम्स प्रेजेंट होते हैं, मॉडिफाइड फोरलिम्स प्रेजेंट होते हैं विंग्स की फॉर्म में, एंड इनके जो जॉज हैं उन्हें मॉडिफाई किया जाता है, मॉडिफाइड रहते हैं वो, और हॉनी टूथलेस बीक, दैट इज बीक की फॉर्म में वो प्रेजेंट रहते हैं। बोन्स आर लाइट एंड वेट बिकॉज ऑफ एयर स्पैक्स एंड बॉडी इज स्ट्रीमलाइन्ड टू रिड्यूस एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग फ्लाइट। क्या होता है कि इनकी जो बोन्स हैं वो लाइट वेटेड रहती हैं ताकि जो एयर स्पैक्स हैं वो उनमें प्रेजेंट रहते हैं। बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइन रहती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी इसलिए रहती है ताकि जो एयर रेजिस्टेंस है जब वो फ्लाई करे
तो एयर रेजिस्टेंस को वो रिड्यूस कर पाए, इसीलिए उनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन रहती है। एंड लंग्स एज वेल एज देयर एयर सैक्स आर प्रेजेंट फॉर डबल रेस्पिरेशन। जो हमारे वीस हैं उनमें क्या होता है, लंग्स और एयर सैक्स दोनों ही डबल रेस्पिरेशन के लिए प्रेजेंट रहते हैं। द सिरिंज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। इनमें जो साउंड है उसका प्रोडक्शन सिरिंज के थ्रू होता है। Words are egg-laying, where egg possesses large amount of yolk and the cell covering of yolk is hard. जो वर्ड्स हैं वो ऑब्वियसली एग लेइंग होती हैं, वो एग्स देती हैं, जिनमें जो उनके एग्स होते हैं उनमें लार्ज अमाउंट ऑफ यॉल्क प्रेजेंट रहता है, और जो यॉल्क है, जो शेल कवरिंग है, वो काफी हार्ड रहती है। क्लियर, जो यॉल्क की सेल कवरिंग है वो काफी हार्ड रहती है। एग्जाम्पल्स के लिए पिजन हुआ, स्पैरो हुआ, क्रो हुआ, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हो गए, ये सब एबीज की एग्जाम्पल हो गए। अब बात आती है हमारे मैमेलिया। मैमेलिया वो होते हैं जिनमें ब्रेस्ट प्रेजेंट रहती है, हैविंग ब्रेस्ट। क्लियर, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, मूवेबल आईलाइड्स आर प्रेजेंट। जो मैमेलिया फैमिली होती है उसमें क्या होता है, जो बॉडी है वो हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में डिविजिबल रहती है, और आईलिड्स जो होती है उनमें मूवेबल प्रेजेंट रहती है। They are warm-blooded animals which have four chambered heart. जो मैमेलिया क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जिनमें 4 chambered heart प्रेजेंट रहते हैं। Females have mammary glands for the production of milk to nourish and suckling the young ones. जो फीमेल्स होती हैं मैमेलियास में उनमें मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, दैट इज ब्रेस्ट प्रेजेंट रहते हैं, जिनमें क्या होता है, जिसके ही थ्रू जो हमारी मिल्क है उनका प्रोडक्शन होता है, और मिल्क के प्रोडक्शन होने की वजह से ही जो यंगन्स हैं, दैट इज जो यंग वंस हैं, जो उनके किड्स हैं, उनको वो नरिश कर सकते हैं और उनको सकलिंग करा सकते हैं। क्लियर, ऑल्सो दीज आर नोन टू बी द एडवांस ग्रुप ऑफ एनिमल्स विद अ वेल डेवलप्ड ब्रेन। ये क्या है, ये एनिमल्स का एक एडवांस ग्रुप होता है जिसमें वेल डेवलप्ड ब्रेन प्रेजेंट रहता है। Sweat glands and oil glands are present in their skin and serve as lubricants and detoxifiants of the body. Skin is covered with hair. इनमें क्या होता है, इनमें स्वीट ग्लैंड्स एंड ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं इनकी स्किन में, और वो लुब्रिकेंट्स और डिटॉक्सिफिकेंट्स की तरह सर्व करते हैं। क्लियर, इनकी जो स्किन होती है वो हेयर से कवर्ड रहती है। ऑल्सो मैमेलिया इज द फर्स्ट क्लास टू मार्क द प्रेजेंस ऑफ ईयर पिना। जो मैमेलिया होती है वो फर्स्ट क्लास होती है जिसमें जो ईयर पिना है वो पाया गया, दैट इज जो एक्सटर्नल ईयर रहता है हमारा, वो हमारा मैमेलियस फैमिली में ही पाया गया। They have limbs, इनमें limbs present रहते हैं, and are adapted for walking, running, swimming, burrowing and even flying. और उन्हीं के थ्रू हम जो दूसरे मैमेलिया फैमिलीज के सब ऑर्गेनिज्म हैं वो वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके लिम्स होते हैं वो अडेप्टेड होते हैं इस सब चीजों के लिए। क्लियर, also most of the mammals produce live younguns, but some are oviparous and some like kangaroos give birth to very poorly developed younguns. ज्यादातर जितने भी हमारे मैमल्स होते हैं वो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, जबकि कुछ ओविपोरस होते हैं, दैट इज दे लेग एग्स, व्हाइल सम कंगारूज लाइक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, वो पुअरली डेवलप्ड यंग वंस को बर्थ देते हैं। क्लियर, so that was all about mammalia family. Also respiration is through lungs only. जो mammalia family है उसमें जो respiration है वो lungs के थ्रू होता है। They excrete urea and fertilization is internal. ये क्या करते हैं, ये यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। They produce live young ones. ये क्या करते हैं, live young ones का प्रोडक्शन करते हैं, that is ये viviparous होते हैं। क्लियर, एग्जाम्पल के लिए जो रैट है, ह्यूमन है, कैट है, डॉग, चिंपैंजी, कंगारू, व्हेल, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हो गए, ये सब मैमेलिया फैमिली के एग्जाम्पल्स हो गए। सो इट्स टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेस क्वेश्चन इज गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ द रेंज ऑफ वेरिएशन यू हैव सीन इन योर लाइफ फॉर्म्स अराउंड यू। आपको कुछ ऐसी वेरिएशंस के बेसिस के एग्जांपल्स देने हैं जो आपने अपने अराउंड देखे हुए होंगे। योर टाइम टू स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out.
एक्चुअली दे आर वेरिएशन इन साइज। आपने देखा होगा एक छोटे से इंसेक्ट से लेके एक बिगर साइज वाला एलिफेंट तक आपने देखा होगा, तो ऑब्वियसली आपने वेरिएशन इन साइज देखा होगा ऑर्गेनिज्म में। वेरिएशन इन लाइफ स्पैन, आपने लाइफ स्पैन में भी वेरिएशन देखा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपने एक मस्क्यूटो जिसकी मुश्किल से 4-5 डेज लाइफ होती है, वहां से लेके जो ह्यूमन जिनकी 80-100 इयर्स लाइफ होती है, वहां तक आपने ऑर्गेनिज्म को देखा हुआ होगा। लाइफ स्पैन में भी आपने वेरिएशन देखे हुए हैं। एंड आफ्टर दैट वेरिएशन इन बॉडी कलर्स, ऑब्वियसली आपने देखा होगा कोई ह्यूमन ब्लैक है तो कोई व्हाइट है, क्लियर। कोई एनिमल है जिसका कलर ग्रेइश है तो किसी का कलर ब्लैक है, कोई कलरफुल पैरेट है तो कोई नॉर्मल ग्रीन पैरेट है। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ वेरिएशन इन बॉडी कलर्स। तो आपने नॉर्मली 3 वेरिएशंस कौन-कौन से देखे होंगे? वेरिएशन इन साइज, वेरिएशन इन लाइफ स्पैन एंड वेरिएशन इन बॉडी कलर्स। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने जो एनिमलिया किंगडम है उसके बारे में और डिटेल में उसके बारे में डिस्कस किया और उसकी कुछ फैमिलीज के बारे में डिस्कस किया। दैट इज हमने एम्फीबियंस के बारे में डिस्कस किया, देन हमने रेप्टिलिया के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद हमने एबीज के बारे में डिस्कस किया और देन हमने मैमलिया फैमिली के बारे में डिस्कस किया। सो इट्स द एंड ऑफ आवर चैप्टर। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोना डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, गुड